So Rajkishore, you want to give a snap for thermodynamics, and you are going for Yes, NFL, sir. National Yes, sir. Fertilizers Limited. Yes. Let's start your MOOC, Rajkishore. So Rajkishore, just tell me first law of thermodynamics. First law of thermodynamics. It is a cyclic process which net heat transfer equal to net work transfer is called first law of thermodynamics. It is a quantitative law, sir. How you can say that this is only quantitative law? Cyclic integral, sir. You are Sorry, saying, sir, sir. this is quantitative law. How you can say that this Yes. is quantitative law? And what do you mean by that? सर ये क्वालिटी को डिफाइन नहीं करता सर फर्स्ट Fine, फर्स्ट good. लॉ ऑफ Yes, yes, good. So what do you mean को by डिफाइन नहीं quality? करता ये क्वांटिटी को डिफाइन करता ठीक है आप सही सोच क्वालिटी रहे हो मींस राजकिशोर. You're thinking right. It is. This law does not define the quality. But what do you mean by quality? किस चीज की क्वालिटी की बात कर रहे हैं? सर यूजेबिलिटी मतलब हीट जैसे एनर्जी के यूज करने की कैपेसिटी जो होता है ना सर वो यूजेबिलिटी को क्वालिटी से डिफाइन किया जाता है. अच्छा, when the quality of heat will be more, how you can improve the quality of heat? Like suppose if I will give you some heat, Yes, sir. some one megajoule of heat, if I will give you, or some that suppose that heat is available to us by carrying out some kind of chemical reaction, nuclear reaction or anything, combustion से हमें इतना heat available है, 1 megajoule is heat is available to us. So how we can Yes. further upgrade its quality? Can we upgrade? Can we change the quality of its heat? क्या heat का जो quality है उसको हम change कर सकते हैं? Sorry, sir. I don't remember this point. Try to think. Rajesh, you are very close. Exactly, you defined quality, but you have not actually answered what do you mean by quality. Quality से क्या मतलब है? अच्छा, quality ज़्यादा कब होता है? ये तो चलो छोड़ो, quality कैसे improve करेंगे? Like suppose if I will give you two heats, एक Yes, sir. megawatt heat, this is another megawatt heat. How you will decide which one is having more quality? Both heats quantitative wise both are same. This is also 1 Yes. megajoule. This is also 1 megajoule. How you will decide which one is having more quality? अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी पे हम डिसाइड कर सकते हैं सर जिसका Very good. Yes, yes. अवेलेबिलिटी जिसका जितना अच्छा होगा सर उसका क्वालिटी उतना ही Very बेटर good. होगा. So availability depends on what? Availability किस चीज पे डिपेंड करता है? अवेलेबिलिटी डिपेंड्स करता है यूजेबिलिटी ऑफ एनर्जी अप टू सिस्टम का जब तक डेड स्टेट नहीं हो जाता है सर तब तक वो जो मैक्सिमम एनर्जी को यूज कर लेता है सर इस डिफाइन नहीं होता है. नहीं, availability बात को होता क्या है? समझ Can पा you रहे हैं लेकिन define सर Rajkishore? डिफाइन करने में सर प्रॉब्लम होता है. Can you define availability or available energy, Rajkishore? Yes, sir. Available energy. That energy which is utilized for a maximum limit limit of the system. जब तक वो डेड स्टेट पे नहीं पहुंच जाता है सिस्टम तो उसका ये जो मैक्सिमम एनर्जी को हम यूज कर लेंगे ना तो वही एबिलिटी होता है. अच्छा, मैं आपको Q1 heat देता हूँ. Q1 heat which is available to you at some temperature 323 degrees Celsius. Yes, sir. The heat or what you can say steam which is available to us at 323 degrees Celsius. Yes, sir. Okay. अगर मैं बोलूं कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस, क्वांटिटी ऑफ हीट है 1 Yes, sir. मेगाजूल. क्वांटिटी ऑफ हीट अच्छा. कितना है? 1 मेगाजूल. 1 मेगाजूल इज द क्वांटिटी ऑफ हीट. तो क्या मेरे को अवेलेबल पार्ट बता सकते हो उसमें कितना अवेलेबल पार्ट होगा? हाउ मच इज द अवेलेबल पार्ट ऑफ एनर्जी? 1 मेगाजूल में कितना अवेलेबल पार्ट है? यस सर बता सकते हैं. हाँ, यस. सर अवेलेबल एनर्जी का फॉर्मूला होता है Q1 माइनस T0 अपन T1. तो सर 1 मेगाजूल जो टोटल एनर्जी दिया हुआ है सर हीट जो टोटल दिया हुआ है 1 माइनस एम्बिएंट टेम्परेचर दिया हुआ है सर और मैं T1 टेम्परेचर भी दिया हुआ है तो सर इसमें कैलकुलेट हम करके बता सकते हैं सर कितना अवेलेबल एनर्जी है. तो क्या इससे ये बताना मुश्किल है राजकिशोर की व्हेन द अवेलेबल एनर्जी विल इंक्रीज? कैसे बढ़ेगी अवेलेबल एनर्जी? क्या बढ़ाना पड़ेगा? अवेलेबल एनर्जी बढ़ाने के लिए क्या बढ़ाना पड़ेगा? फॉर ए सम फिक्स्ड अमाउंट ऑफ हीट यू आर हैविंग सो यू कैन नॉट चेंज क्यू को आप चेंज नहीं कर सकते. So how you can increase the available energy?
टेम्परेचर को सर यूज करके हम अवेलेबल एनर्जी बढ़ा सकते हैं, टी मैक्स को यूज करके सर। जितना टी मैक्स यूज होगा सर उतना अवेलेबल एनर्जी होगा। Tmax is temperature of the, what you can say, source, सोर्स, यस temperature सर, of the फ्रॉम heat, नेचर ऑफ सर। temperature of the यस source और सर। temperature of the heat। तो अगर उसको हाँ बढ़ाओगे तो क्वालिटी बढ़ जाएगा ना। क्या हम बोल सकते ये हैं कि the heat is available at high temperature तो उसका क्वालिटी बढ़ जाएगा? यस सर, हम बोल सकते हैं। तो इसमें क्या दिक्कत है? ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। Heat is two quantities, both are having same quantity. This is also 1 megajoule, this is also 1 megajoule. According to first law, both are same. फर्स्ट लो दोनों में सेग्रीगेशन नहीं करता, फर्स्ट लो बोलता है कि बोथ आर सेम, बट सेकंड लो यस क्या सर। कहता है कि ऑल्दो क्वांटिटी वाइज बोथ आर सेम, but one which is available to us at high temperature, that is quality wise that is superior. Why? Because in that particular heat यस सर। available part of the energy is more, so we can get more work. Although quantity wise both are same, this is also 1 megajoule, this is also 1 megajoule, this is available to us at high temperature, this is available to us at low temperature. Okay, अगर मैं आपको 1 मेगाजूल हीट दे दूं at 27 डिग्री सेल्सियस, 1 मेगाजूल हीट दे दूं मैं आपको 27 डिग्री सेल्सियस, उसमें अवेलेबल एनर्जी यस कितना हो जाएगा? अवेलेबल एनर्जी जीरो हो जाएगा। अवेलेबल एनर्जी एम्बिएंट क्या हो जाएगा? जीरो। टोटल की टोटल क्या है? अनअवेलेबल है। आर यू गेटिंग दैट व्हाट आई एम सेइंग? यस सर। एम्बिएंट टेम्परेचर अगर दिया हो तो सर उससे कंपेयर कर सकते हैं, अगर एम्बिएंट भी दिया हुआ है, अगर हाँ तो मैक्सिमम हीट तो टेम्परेचर में। अवेलेबल है ना, अभी जहां आप अपने आसपास देखोगे लोड्स ऑफ अमाउंट ऑफ हीट इज अवेलेबल, क्वांटिटी वाइज तो बहुत हीट अवेलेबल है, बट उसका क्वालिटी क्या है? लो है। ये लो है। यस तो क्वालिटी कैसे बढ़ा सकते हैं? अभी कुछ आइडिया आ रहा है आपका कैसे हम क्वालिटी बढ़ा सकते हैं? क्वालिटी बढ़ा सकते हैं सर उसके यूजेबिलिटी ऑफ द मैक्सिमम टेम्परेचर, जो सिस्टम मीन का टेम्परेचर मैक्सिमम ऑफ हीट टेम्परेचर एडिशन को को हम बढ़ा जितना के, यूज कर मीन सकते टेम्परेचर, हैं। अगर हीट का यस सर। मीन टेम्परेचर बढ़ा दे, मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन, तो कैसे बढ़ाते हैं? कैन यू गिव मी सम एग्जांपल राजकिशोर? मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन कैसे बढ़ाते हैं? कैन यू गिव मी सम एग्जांपल? पावर प्लांट में यूज करते हैं इसको, एनएफएल में पूछेंगे आपसे, सर हाउ वी मीन इंक्रीज द टेम्परेचर मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन? सुपर हीटिंग सुना है आपने? सुपर हीटिंग, सुपर हीटिंग का सर, और रीजनरेशन प्रोसेस करके, और क्या बोलते हैं उसको। बिल्कुल सुपर हीटिंग कर सकते हैं, रीजनरेशन कर सकते हैं, बिल्कुल सही। तो इनको ये सब। प्रैक्टिकली यूज करते हैं ना पावर प्लांट में। यस सर, यूज करते हैं, रैंकाइन साइकिल यस में इसको यस। यूज होता है सर। तो इनको याद रखना है, भूलना नहीं है। यस सर। यस अच्छा, मेरे को एक चीज और बताओ यस सर। राजकिशोर, अगर अगर हम फर्स्ट लॉ डिफाइन करें फॉर ए स्टडी प्रोसेस यस सर। ओपन सिस्टम के लिए, कैसे लिखते हैं हम? हाउ वी राइट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर एन ओपन सिस्टम? ये जो आपने बताया साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ हीट इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ वर्क, दैट इज फॉर क्लोज सिस्टम और ओपन सिस्टम? साइक्लिंग इंटीग्रेशन सर ये बोथ बोथ के लिए सर, क्लोज और ओपन दोनों के लिए। क्लोज ओपन दोनों के लिए हो रिवर्स। जाएगा? नहीं, दिस इज फॉर रिवर्सिबल रिवर्सिबल बोथ, बट ये तो क्लोज साइकिल किसमें बनेगा? आपको क्लोज साइकिल किसमें बनेगा? साइक्लिक इंटीग्रेशन के क्लोज में लिए बनेगा। सॉरी सर, क्लोज के लिए, ओपन सिस्टम के लिए नहीं होगा, रिवर्सिबल और रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए होगा। यस सर। यस यस यस। हम्म। अच्छा बताओ मेरे को, ओपन सिस्टम में कैसे लगाओगे? हाउ यू कैन डिफाइन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर एन ओपन सिस्टम? स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन का सर यूज करके बोलेंगे, h1 प्लस v1 वेरी स्क्वायर गुड बाय वेरी 2। गुड। क्या होता है, क्या होता है स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन? क्या होता है? सर वो डिफाइन तो नहीं कर सकते सर, वो प्रोसेस पता है, h1 प्लस v1 स्क्वायर बाय 2 प्लस g z प्लस w इक्वल टू h2 ठीक है, वो क्या v2 स्क्वायर रिप्रेजेंट बाय। कर रहा है? व्हाट दोज क्वांटिटीज आर रिप्रेजेंटिंग? एंथैल्पी और वर्क हीट को रिप्रेजेंट करता है सर। इनलेट वेलोसिटी, एग्जिट वेलोसिटी और पोटेंशियल एनर्जी एट इनलेट पॉइंट और पोटेंशियल एनर्जी एट एग्जिट पॉइंट।
फिर ओपन क्वासी सिस्टम के लिए स्टैटिक से क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, राजकिशोर? इट इज वेरी वेरी स्लो प्रोसेस. हम्म। Quasi static process is very slow process. Why we are saying it is a very slow process? सॉरी सर, नहीं नहीं पता है सर इसके बारे में. अच्छा, मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे राजकिशोर। ये सर. आपने गैस थर्मामीटर सुना है? कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर। कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर. ये सर नाम तो सुना है. क्या होता है ये? हाउ इट वर्क्स एंड व्हाट इज द पर्पस? कांस्टेंट प्रेशर के लिए तो सर वो थर्मोमीटर का यूज करते हैं जीरोथ लॉ के कॉन्सेप्ट पे. कांस्टेंट गैस के लिए सर एग्जैक्ट पता नहीं है इसके बारे में. अच्छा, एक लास्ट, चलो एक और क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूँ। ट्रिपल पॉइंट आपने सुना? ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ये सर. क्या होता है ये? ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर सर, ट्रिपल पॉइंट पे सर ऑल द कंडीशन ऑफ मतलब इसके बियॉन्ड सर कोई भी कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करता है सर. कोई भी कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करता है? ये तो इट इज नॉट मेकिंग एनी सेंस, राजकिशोर। थोड़ा सोचो बच्चे, सोचो यस थोड़ा। सर. सर ट्रिपल पॉइंट यूज तो सर कितने बार किए, लेकिन सर अच्छा, होता कितना है ट्रिपल पॉइंट? सर टेम्परेचर और प्रेशर का 273 पॉइंट समथिंग टेम्परेचर होता है सर. प्रेशर प्रेशर का एग्जैक्टली याद नहीं है. 273 पॉइंट कितना? 273.1 2 3 4 5 1 1 1 5 1 6 कितना? 15 होता है सर. 15 होता है, 23.15. 16 होता है? 15 होता है सर, एग्जैक्ट 5 ही होता है. ठीक है राजकिशोर, अभी आपको फीडबैक दे देता हूँ मैं। अभी मैं ओके इसको सर. जल्दी एंड कर रहा हूँ। पता क्यों एंड कर रहा हूँ? क्योंकि आप अभी पकड़ नहीं पा रहे हो चीजों को। आपके पास टाइम है, लेकिन उस टाइम को यूटिलाइज करो बच्चे। यू आर हैविंग टाइम, बिकॉज अभी एनएफएल ने डेट डिक्लेयर नहीं किया है, तो अभी आपके पास अपॉर्चुनिटीज है। दे शॉर्टलिस्टेड यू, मींस यू आर हैविंग चांस। अभी आपको उसको एफर्ट करने हैं बच्चे आपको। अभी आप प्रिपेयर सर नहीं हो इंटरव्यू के लिए, राजकिशोर। सर कैसे इम्प्रूव करें सर? इम्प्रूव करने का कोई बताइए सर, कैसे इम्प्रूव करें? देखो, एक तो मैराथन क्लास देखो आप विजेंद्र सर का, 6 आवर्स का यस. मैराथन क्लास अवेलेबल है थर्मोडायनेमिक्स का। देखा आपने पहले? ये सर एक बार देखा हूँ सर. उसको एक बार और देखो, ठीक है? ठीक है एक सर. बार और देखो और पूरा रिवाइज करो अच्छे से। अच्छे से रिवाइज करो। अभी आपके कंसेप्ट इतने रिफाइंड नहीं है। ट्रिपल पॉइंट नहीं आप बता पा रहे। ट्रिपल पॉइंट इज 0.01 डिग्री सेल्सियस और 273.16 केल्विन। अब 273.1 क्या बोलोगे ना? 273.16 केल्विन, 16 केल्विन केल्विन होता है। होता है. ये सर. बिकॉज ट्रिपल पॉइंट कितना होता है? 0.01 डिग्री सेल्सियस। ट्रिपल पॉइंट प्रेशर कितना होता है? प्रेशर ये एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा था. 6 किलो पास्कल के आसपास, ठीक है? तो ये सर. अभी आपको थोड़ा सा कंसेप्ट रिवाइज करने हैं राजकिशोर अपने। क्वालिटी, चलो आपने धीरे धीरे मैं वहां पहुंच गया और आपको वहां आप बता पाए कि क्वालिटी से क्या मतलब है। बट आप बड़ा क्लियर होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय क्वालिटी, ठीक है? फर्स्ट लॉ इज ए क्वांटिटेटिव लॉ, बट व्हाई इट इज ए क्वांटिटेटिव लॉ, यू नीड टू डिफाइन दैट, ठीक है? सेकंड लॉ ये सर. क्वालिटेटिव लॉ क्यों है? बिकॉज दैट गिव्स अस द कांसेप्ट ऑफ अवेलेबल एनर्जी, and when the available energy is more in any particular heat, what you can say, the quality of heat is more, ठीक है? ये क्वासी सर. स्टैटिक का मतलब क्या है कि सर ए प्रोसेस which is a succession of infinite equilibrium state or a process which occurs in a very slow manner such that
in every during that particular process, at every time the system is in equilibrium with the surrounding. And when it is possible, like suppose some expansion is taking place or some compression is taking place, any process. So when you can assume there is no gradient between the system and surrounding, when you are actually carrying out that process in a very slow manner. अगर वो स्लो मैनर में होगा तभी क्या होगे, ग्रेडियंट नहीं होंगे, like P internal equal to P external. Yes, But sir. कब होगा, when you are moving the center arrangement in a very slow manner. Yes, sir. ठीक है, तो क्वासी स्टैटिक डिफाइन करो. क्वासी स्टैटिक, फ्रिक्शनलेस क्वासी स्टैटिक को हम क्या बोलते हैं? दैट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस. व्हाई? Reversible बिकॉज़ process. हम एक रिवर्सिबल प्रोसेस डिफाइन करना चाह रहे थे. रिवर्सिबल प्रोसेस कब होगा? जिसमें जो सिस्टम है और सराउंडिंग है उन दोनों के बीच में देयर इज नो ग्रेडियंट्स एट ऑल. नो मैकेनिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट, नो थर्मल ग्रेडियंट्स, नो केमिकल ग्रेडियंट्स. तो कोई भी ग्रेडियंट नहीं होना चाहिए सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में. Okay, sir. ट्रिपल पॉइंट डिस्कस हो गया. चलो अवेलेबल एनर्जी तो आपने बताया था, बट अभी आप उसको डिफाइन नहीं कर पाए. मैं फॉर्मूला तो आपने दे दिया था. Available energy is the maximum work which we can obtain by bringing the system to the dead state. Okay, sir. Thank you, sir.